ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਖਿਰਖਿਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਮਾਗਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। योगी सुबह सतनाम सिंह जी, प्रधान हरि सिंह जी लीड वाले आप जी ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣਗੇ। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज जी ते महाराज वीर सिंह जी ते सारे ही गुरु परिवार के चरणों के विच दास लीड दियां सारियां ही नामधारी संगतों नूं आप जी के चरणों के विच हाजरी भरन लई उन्हां वल्लों आप जी के चरणों के विच अर्ध बेनती करन लई कि जो शरीर उतों नहीं पुज सके उन्हां दी भी आप जी ने हाजरी प्रवान करनी। जो ये अज दा समा दारा सलाम दे प्रबंधकां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच अरदास बेनती करके साडे सारियां लई ही ये समा बनाया है। साडे सारियां दे ही उत्तम भाग हैं। भावें असी सारे ही इन्हां दे चरणों के विच हर समय अपने स्वाद के नाल अरदास बेनतियां करते हैं, और जिस वेले प्रत्यक्ष दर्शन दीदारे होंदे हैं उस वेले गुरसिख दे जो मन की दशा होंदी है वो असी आप ही अनुभव करते हैं। जो अज असी सारे ही अज का जो ये नज़ारा आप सारिया ने ही तकिया है, ये सतगुरु पातशाह जी नूं ही बनाउंदे हैं। ये सारे ही इस तरह के प्रत्यक्ष नज़ारे जो साडे जीवन दे विच कदे भी सानूं भुलदे नहीं। जिस तरह कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने 1914 दे विच 1934 दे विच जो सर्व संप्रदा कॉन्फ्रेंस करके मील पत्थर जो गढ़िया सी, वो कदे भी वो पुरानी गल नहीं हो सकती। अज का भी जो भयानक समा जा रहा है ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा का सदका ही है। जो असी सारे अज का जो नज़ारा देख के मन प्रफुल्लित हो गया है, सारे जीवन के विच समा इस तरह की याद बनया रहेगा। दास सतगुरु सच्चे पातशाह जी का तंजानिया की नामधारी संगत का तय दिलों हाथ धन्यवादी है जिन्होंने ये समा बनाया। संत अर्जुन सिंह जी मथारू बॉम्बे वाले, सुबह सेवा सिंह जी जगाधरी वाले, संत हरजिंदर सिंह जी कमल इंग्लैंड,
ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ दीना बंधु करना निदान श्री सतगुरु जी महाराज ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, મારા હું જોઉં છું કે મારા ગુજરાતીઓ ભાઈ બહેનો આજે બહુ આવ્યા છે. મારો જન્મ ગુજરાતીમાં થયો, ગુજરાતી લોકોમાં થયો તો મને 20 વર્ષ થઈ ગયા છે ગુજરાતી નથી બોલતો હું, તો એટલા માટે આટલી પ્રેક્ટિસ નથી. પણ આજે તમને બધાને જોઈને મારું મન થયું કે હું ગુજરાતીમાં જ કાંઈ કહું. તમને એક વાત બતાવું કે મારા ઘરની સામે જ એક સ્વામિનારાયણ મંદિર હતું. ત્યાંથી દરરોજ એક રેકોર્ડ હું સાંભળતો ને એ રેકોર્ડ તમને હું સંભળાવું આજે તો તમને એ 20-30 વર્ષની ઓલી જિંદગી છે એ તમને યાદ આવશે. એ છે ને એ જ પ્રાર્થના હું ગુરુજી સામે કરું છું. જે રેકોર્ડમાં ગુજરાતીના રેકોર્ડ હતો એમાં આવી છે. શ્રીજી મૂર્તિમાં हमने रात जो, श्री जी मूर्ति माँ हमने रात जो, जानी वीराना कव सुपनाथ केवल तमे आप जो, श्री जी मूर्ति माँ हमने रात जो. આ ગાયન જ્યારે સાંભળતો હતો હું તો મને આજ જ્યારે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જોયું તો મને આ રેકોર્ડ યાદ આવી ગયો. એક બીજી વાત તમને કહેવાની છે. જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી ત્યારે પુલ બનાવ્યું, જ્યારે લંકા જીતવા ચાલ્યા ત્યારે શ્રી વિશ્વકર્માજીના બે જો બેટા હતા નલ અને નીલ, એ લોકોએ એ પુલ તૈયાર કર્યું. જ્યારે પુલ તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીના પાસે એ લોકો આવ્યા ત્યારે કીધું કે તમે બહુ સારું કર્યું છે, પુલ બનાવ્યું છે, તમે તો બહુ કારીગર છો. તો એ લોકો નલ નીલને કીધું કે મહારાજ એ સબ આપજીની બક્ષિસ છે, આપનું નામ લખ્યું તો આ પથ્થર જો હતા એ તરી ગયા. તો શ્રી રામચંદ્રજીએ કીધું કે એ કેવી રીતના થઈ શકે. એ લોકો શ્રી રામચંદ્રજી એક પથ્થર ઉપાડ્યું આમ ફેંકી દીધું. ત્યારે ફેંકી દીધું તે પથ્થર ડૂબી ગયું. તો પછી શ્રી રામચંદ્રજીએ નલ નીલને કીધું કે આ જો તમે તો કહો છો કે પથ્થર તરે છે મારા નામથી, પણ આ જો તો પથ્થર થઈ ગયો, આ તો ડૂબી ગયો છે. તો નલ નીલે કીધું કે મહારાજ જેને તમે તારો ઈ જ તરે, જેને તમે ડૂબો ઈ ન તરી શકે કાંઈ. તો એટલા માટે જ્યારે તો મહારાજજી બહુ ખુશ થયા નથી. તો એનાથી પછી કીધું કે તમે કોઈ વર માંગો. તો મહારાજજીએ કીધું કે શું તમે વર માંગો. તો એ લોકો કહે કે મહારાજ અમે જો મિસ્ત્રી લોક છે, અમારે બધું કોઈ અમારી ઇજ્જત નથી, તમે એમ કહો અમારી કુલમાં તમે જન્મ ધારો. તો ત્યારે મહારાજજીએ કીધું, શ્રી રામચંદ્રજીએ કીધું કે હમણાં તો નહીં, પણ અમે કલયુગમાં આવશું. અમારો હમણાં રામચંદ્ર નામ છે, પછી અમે ત્યારે કલયુગમાં આવશું તો અમારું નામ ત્યારે રામસિંહ હશે और અમે તમારી કુલમાં જન્મ લેશું. એવી રીતના આજે જો આજનો કાર્યક્રમ અમે કરીએ છીએ એ સદગુરુ રામસિંહજીની બધી યાદ છે. ઈ આજ રામચંદ્ર રામ મંદિરમાં છે. ઈ ઓલા એક શ્રી રામચંદ્રનો રૂપ, રામચંદ્રનો અવતાર શ્રી રામસિંહ સદગુરુ રામસિંહજી મહારાજજીનો આજે એ ઉપલક્ષમાં અમે આજે બધું કરીએ છીએ. આ બધા આપણી जुबानથી કહો ધન શ્રી सतगुरु रामसिंह जी. मैं आप जिस तरह पहुंचा आए थे वो मैं ही जानता हाँ, जो सच्चे पातशाह जानते हैं. मैं एक छोटी जी लोक सत्रह की कविता है वो सच्चे पातशाह जी के पेश करता हाँ. तेरी बख्शिश ही सदके मैं पूजा हाँ तेरे दर पे, तेरी बख्शिश ही सदके मैं पूजा हाँ तेरे दर पे. इकट्ठे पावनों करके ले आया हाँ सिदक भर के. इकट्ठे पावनों करके ले आया हाँ सिदक भर के. मेरे शब्दां दे दिल खुल ही तुसा परवान कर लेना.
मेरे शब्दां दे तिल फुल ही तुसां परवान कर लेना हलीमी दे मेरे सानू अज मेहमान कर लेना मेरे हिरदे दी धड़कन इना चरनां च थां देनी इत्थे रात ज़माने दी मुरब्बत दो जहाना दी तुसी मेहरान तां करके मेरे पावां हां देना तुसी मेहरान तां करके मेरे पावां हां देना दुआरे आप दे आके ज़माना भुल जांदा है ज़माना भुल जांदा है सुभागा है हर बंदा जो इस बूहे पे आंदा है दास ਨੂੰ बहुत खुशी ਹੁੰਦੀ है कि साडी कौम ਦੇ पंथ रतन मास्टर निहाल सिंह जी भी अपनी शासन में हाजिर हैं ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ सतगुरु की दिशा की मैं साथ संगत सारे प्रेम से कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह। मैं इस शुभ मौका पर कुछ शब्द आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। हम लोग ऊपर के शब्द से प्रसिद्ध मैं कर जो हम उनका क्या शब्द है उनका सिख पंथ की सिख धर्म की एक विशेषण है जिसकी जड़ें हिंदू धर्म में है। भाव हिंदू धर्म सिख धर्म उपाइज्म एक ही बात और जो कोई समय ऐसा था कि जब हमारे विदेशी आक्रमणों के कारण हमलों के कारण अरबों ने गजनियों ने तुगलकों ने हिंदुस्तान पर जब हमला किया तो हमारी सभ्यता को नष्ट करने का यत्न किया। उस वक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार लिया और उसी पुराने ऋषियों मुनियों पैगंबरों का पैगाम पहुंचाने के लिए आप पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की ओर गए और वो सच धर्म का जो पैगाम था वो पहुंचाया। और उन्होंने एक बात अलग की इस बगीचे को इस धर्म की रक्षा के लिए अपने जगह पर एक ऐसा माली रख दिया श्री गुरु अंगद देव और उसके बाद एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई गुरु अंगद देव गुरु अमरदास रामदास गुरु गोविंद सिंह सतगुरु राम सिंह और इसी तरह से श्रद्धा चलता ताकि वो धर्म जिसकी सब संसार को जिसकी जरूरत है जिसको आवश्यकता है जिसके बगैर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता वो हमेशा कायम है। श्री सतगुरु राम जी महाराज उसी धर्म की पालना की खातिर हाँ इतिहास में आता है कि नामधारी सिंहों ने गौओं की खातिर देश की खातिर धर्म की खातिर
हमारे अमृतसर में सिख शहीद हुए, रायकोट में शहीद हुए, लुधियाना में शहीद हुए, बल्कि 66 सिख मलेरकोटला की धरती पर टोपों के सामने गए। केवल उनका एक ही मंशा था कि संसार में धर्म कायम हो, देश ऊंचा हो, देश बुलंद हो। हमें दुख इस बात का कि वो विदेशी ताकत जिसने सारे संसार पर राज किया, वो ब्रिटिश राज, सतगुरु रामचंद्र जी ब्रिटिश अंग्रेज के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके राज की नीति के खिलाफ थे। उन्होंने ये हिंदू सिख 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 मुस्लिम का ऐसा भेद डाला ताकि उनकी हमेशा के लिए जो है सल्तनत और कायम रहे। लेकिन हमारा इस समाज का मंत्र एक राम राज का देखना, जिसकी हमारे बड़े मुद्दत सिलसिले है। मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि हम संत ज्ञान सिंह जी ने शब्द कहे, राम कहे चित शांत होए, सिंह कहे बैहान, कहते नित्य सिमरिए राम सिंह भगवान। प्रताप सिंह जी फ्लोरा लोबी वाले। Chairman Ismailia Community Council of Tanzania, Your Holiness Sri Sadguru Jagjit Singh Ji Maharaj, ladies and gentlemen, on behalf of Ismailia community of Tanzania, it gives me great pleasure to welcome Your Holiness to Tanzania. Many communities have settled in Tanzania from Indian subcontinent. Although they follow different religions, they enjoy unity and brotherhood among themselves. It is a matter of pride that we remember and invite one another on such memorable occasions. We firmly believe that peace and strength lies in unity and cooperation between the various communities. Without taking more time, I once again welcome Your Holiness and your entourage to Tanzania. At the same time, we congratulate Namdari Sangat for having been fortunate to have Your Holiness among us all and wish them success in Namdari International Gola. We assure the management committee of Namdari Sangat of Tanzania of our wholehearted cooperation and assistance at all times. Thank you. Rajinder Singh Mathalo, Dar es Salaam. लोबी वाले चाना जी, भजन सिंह चाना। रासुल रामतारी दरबार के इंस्पेक्टर साहब रविंद्र सिंह जी हंसपाल MP इंडिया, उन्होंने बेनती करूँगा कि विभाजन माला तैनात अपने प्रवचन करें।
आप जी की साजिनो जी सार संगत जी, सब तो पहला हिंदी में बोलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको तंजानिया के निवासी जिन्होंने आज का ये सुंदर आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खुद भी शायद बहुत मुश्किल से आज इस आयोजन में पहुंच सका। आज दोपहर ही यहाँ महाराज जी के साथ 3:30 बजे आया हूँ, लेकिन यहाँ बैठा हुआ ये महसूस कर रहा था कि अगर किसी कारणवश यहाँ ना पहुँचता तो इस सुंदर आयोजन से वंचित रहता। होले महल्ले के बारे में बहुत कुछ पहले बताया भी जा चुका है। सिख समाज में ये होले महल्ले की परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से चली। करीब ये होली के दिनों में ही होता है, लेकिन इसका नाम होला महल्ला दे दिया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की चलाई हुई होला महल्ला की रस्म को गुरु राम सिंह जी ने उसी प्रकार जारी रखा। हिंदुस्तान में ये होला महल्ला नामधारी संगत की ओर से हर साल सतगुरु जी की आज्ञानुसार सतगुरु जी की छत्र छाया में देश में कहीं ना कहीं हर साल मनाया जाता है। इस साल 1985 में ये होला महल्ले का उत्सव मार्च के महीना में दिल्ली में मनाया गया। देश से बाहर भी ये होले, शायद इसका जिक्र पहले सतवंत सिंह जी ने किया था। सतगुरु जी के पिता सतगुरु प्रताप सिंह जी ने सबसे पहले 1959 में कंपाला में किया, और उसके बाद ये तीसरा होला सतगुरु जगजीत सिंह जी की हजूरी में यहाँ पर हो रहा है। 1972 में बैंकॉक में हुआ, पिछले साल 1984 में इंग्लैंड में था, और इस साल ये इंटरनेशनल होला जिसको आप देख रहे हैं यहाँ आपके तंजानिया दारसवा में हुआ। नामधारी समाज के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे करके मैं कुछ और बात भी करना चाहूंगा आपके साथ। जैसी जानकारी आपको नामधारी समाज के बारे में है, उसके अलावा थोड़ी सी बातें जो आम तौर पर नहीं मालूम होती उसका जिक्र करूंगा। हम भी गुरु नानक की परंपरा के चलाए हुए सिक्खी में सतगुरु जी की छत्र छाया में सिख हैं। सवाल ये उठता है कि दूसरे सिखों में और हम में क्या फर्क है। दूसरे का मेरा मतलब सिर्फ जो अपने आप को नामधारी नहीं कहलाते। आप जानते हो कि यहाँ पर भी बहुत उस किस्म के सिख हैं। आमतौर से सिख गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक गुरु मानते हैं। उसके बाद जो हमारे ग्रंथ साहिब है, होली बुक है, उसको गुरु ग्रंथ साहिब करके मानते हैं। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बाद लगातार देहधारी गुरु में ही उसी परंपरा को, जिसमें गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक चलती रही है, उसी परंपरा को आगे चलाकर आज सतगुरु जी को अपने गुरु सतगुरु जगजीत सिंह जी की हजूरी में सारा काम संपन्न करते हैं। दूसरी बात, हम लोग शाकाहारी हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और टीटोटलर्स। तंबाकूआद का सेवन जो सिख समाज में वैसे ही नहीं किया जाता, लेकिन उसके अलावा वेजिटेरियन और स्ट्रिक्ट टीटोटलर्स। इसकी डिटेल में और बहुत ना जाता हुआ, मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी हुई, हिंदू सिख और मुसलमान भाई इकट्ठे होकर उन्होंने सतगुरु जी का स्वागत किया। देश के अंदर खास तौर पर और विदेशों में भी इसका काफी आजकल जोर है। तो ये बात अब यहाँ कहनी जरूरी हो गई कि हिंदू और सिख में ना कभी फर्क था और वहाँ आज फर्क है। इस बात का जो मैंने आपके यहाँ ये चर्चा करनी चाहिए इस वक्त,
क्योंकि हिंदू समाज के बहुत भाई यहाँ पर उन्होंने सतगुरु जी का स्वागत किया। हम लोग, मैं खास तौर से ये देश में और विदेश में कहता हूँ, हिंदू और सिख का रिश्ता एक नाखून और मांस का रिश्ता है। ये अटूट रिश्ता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम इससे तोड़ना चाहेंगे तो हम जो पहले 9 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर तक, उनका स्वरूप, उनके नाम, सिंह जो नाम हमारा बना वो गुरु गोविंद सिंह जी से के बाद में बना। गुरु गोविंद सिंह जी भी पहले गुरु गोविंद राय कहलाते थे, जब उन्होंने खुद अमृतपान किया और सिखों का अमृतपान करवाया, उसके बाद वो गुरु गोविंद सिंह कहलाने शुरू हुए। अगर हम अपने आप को हिंदू समाज से अलग करके और सिख समाज आज ये कहना चाहे तो कहते हैं, थोड़ा सा जिक्र उसका भी करूंगा, लेकिन आज अगर कहना चाहे तो फिर हमें पहले 9 गुरु छोड़ने को छोड़े नहीं जा सकते। दूसरी बात, जिसको हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, उसमें हजारों दफा राम शब्द का उच्चारण है, कृष्ण महाराज का जिक्र है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, इसी तरह से एक दशम ग्रंथ है जिसका बहुत प्रचार नहीं आज तक। पहले तो जब गुरु महाराज रणजीत सिंह का टाइम था, उस वक्त तो उनके दरबार में 2 वीरों का, 2 होली बुक्स का प्रकाश किया जाता था, एक गुरु ग्रंथ साहब का और साथ में दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ में खास तौर से वाणी गुरु गोविंद सिंह की सारी वाणी है। उस वाणी में कृष्णावतार, रामावतार, पता नहीं यहाँ पंडित जी आए हुए उन्होंने दीवान लगाया या नहीं लगाया, बहुत विस्तार से वो ये बातें करते हैं, मैं तो आज ही आया यहाँ पर, लेकिन इसका वहाँ पर खास तौर से जिक्र है। उसी में एक वाणी अकाल उस्तत है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने खास तौर से ये कहा, बहुत लंबी वाणी है, मुझे भी सारी याद भी नहीं वैसे, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे अगर पवित्र और पूज्य चीज है तो वो गौ। उसमें वो जिक्र करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, यही बेनती खास हमरी सुनी जय, असुर मारकर रक्ष गौवन करी, असुर मारकर गौ की रक्षा करी। उसके आगे चलते एक लाइन इस तरह से भी है, गौ काट का लोग जग सुन। जब ऐसी बात हो, गुरु गोविंद सिंह जी जिसके आज हम सिख कहलाते हैं, उन्होंने गौ के बारे में ये बात कही हो, ऐसी चर्चा हो कि जिससे ये कहा जाए कि हिंदू और सिख तो अलग अलग चीजें हैं, या हिंदू या सिख वो एक नहीं है, तो फिर हम अपने आप को उस चीज से अलग कर रहे हैं जो हमारे गुरु साहिबान ने कहा, जो हमारे गुरु साहब का बता है। अब जिक्र इस बात का करना चाहूंगा कि बात चली कैसे, बहुत लंबी नहीं, थोड़ी सी बात से इस बात को खत्म करूंगा। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी तरक्की की ओर जा रहा है। हिंदुस्तान ने ये सिद्ध कर दिया है कि वहां पर जो काम हम करना चाहें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो वहाँ के लोग उस चीज़ को पैदा कर सकते हैं, चाहे वो एटम बम हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रॉकेट हो। हम हिंदुस्तानी संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी। हमारी गिनती बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, हम काम भी कर सकते हो। तो जो आज एडवांस कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहती कि वहाँ पर इसी तरह से तरक्की करके ये देश एक नंबर। आज नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ही वो 100 से ज़्यादा देशों की नेता वहाँ बन गई। अब सारे संसार में इसको यूएनओ की मेरा ख्याल है 157-58 नुमाइंदगी है, इसको यूएनओ के मेंबर इस वक्त 157-58 है। उसमें से 100 से ज़्यादा 2/3 मतलब ऐसे हो गए जो इंदिरा गांधी को अपना लीडर मानते थे, और उसके बाद अब वो राजीव गांधी को मानते हैं। उन ताकतों को, जिनका मैं इसका नाम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो ताकतें ये नहीं चाहती कि ये देश तरक्की करके आगे चल के कल को एक नंबर देश बन जाए। तो वो चाहते ये है कि किसी ढंग से भी हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करके अनस्टेबिलिटी ला दें। ये एक उनको बहुत आसान तरीका नजर आया कि हिंदू और सिखों में ऐसा फर्क डाल दो जिससे आपस में ना चले, लड़ाई हो जाए। अब ये सीधी सी बात है, जिस घर में, जिस समाज में
जिस कम्युनिटी में, जिस देश में लड़ाई होगी, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी तरक्की रुक जाएगी। वो लड़ाई डालकर 4-5 लड़ाइयाँ पहले हमारे ऊपर आई हिंदुस्तान के ऊपर, वो भी इसीलिए आई, इसीलिए हमारे ऊपर डाली गई, थोपी गई, ताकि हम जिस तरक्की के रास्ते पर जा रहे थे वो तरक्की रुक जाए। अब फिर उस चीज़ को चाहते हैं कि जो हमारी तरक्की हो रही है उसको रोक। बातें बहुत हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब हमारे भाई, अकाली भाई, जो इस मूवमेंट को पंजाब में चला रहे हैं, उनके मुखी संत लौंगोवाल जी हैं, मेरे वो मित्र हैं और सूझवान समझदार सज्जन हैं। कुछ कारणों से, वो भी बात लंबी है, उनको ऐसी दिशा में जाना पड़ा जो वहाँ पर हालात हुए, उन हालात में उनको साथ में चलना पड़ा। लेकिन उनका जिक्र अब इसलिए कर रहा हूँ कि कल परसों ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा, नामे गुरु तेग बहादुर जी ने उस वक्त शहादत दी जब कश्मीर के पंडित साहिबान ने आकर उनको जिक्र किया कि इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारे धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा, लंबी सी बात है, सब आपको मालूम भी होगी इस बात का। तो उन्होंने उस वक्त ये फैसला हुआ कि गुरु तेग बहादुर अपना बलिदान दिया। जब गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया तो वो हिंद की चादर कहलाए, वो सिखों की चादर या एक समाज की चादर, पंजाब की चादर नहीं कहलाए, वो हिंद की चादर कहलाए। और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने ये काम किए या ये उच्चारण किया। तो लौंगोवाल जी ने कभी 1-2 दिन पहले बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कही कि जो सिख या कोई भी इनोसेंट आदमी का, इनोसेंट हिंदू का मर्डर करता है या मारता है, वो गुरु तेग बहादुर का मर्डर करता है, गुरु तेग बहादुर को मारता है। ये शब्दों में स्पष्ट होता है। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। मैं समझता हूँ उस बात का अब उनको पूरा ज्ञान हो गया है। तो मैंने पहले कही कि कोई और ताकत है जो हमें लड़ाना चाहती है, अब वो लड़ना नहीं। परसों वो दिल्ली में, और दिल्ली में वो उस घर में गए जिस घर में एक हिंदू सज्जन की मौत हो गई जब वो 3 सिख औरतों को नवंबर राइट से बचा रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद दिल्ली में बहुत राइट्स हुए। उन राइट्स में 3 सिख औरतों को, वो सज्जन, उनका नाम प्रभु दयाल था, वो बचा रहे थे। वो औरतें बच गई और वो आग में खुद जल के उनकी मौत हो गई। तो उनके घर में गए, उनको सांत्वना दी और ये बताया कि हमारे अंदर हिंदू सिखों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वहां का माहौल पहले से बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान और तंजानिया, यहाँ पर आप बहुत बड़ी मात्रा में बसे हुए हैं। मैं यहाँ पर पहले 2 दफा आ चुका हूँ। एक दफा तो 1983 में आया था, उससे पहले मेरा शायद 1967 में आया था। और प्रेसिडेंट नरेरी, बहुत पुराने आपके प्रेसिडेंट है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे ये, बहुत इनके आपस में नजदीकी संबंध थे। और जब भी वहाँ पर जैसे नॉन अलाइन मीटिंग हुई, उसमें भी प्रेसिडेंट नरेरी गए, उनका विशेष स्थान था। अब ये 6 नेशंस की वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी प्रेसिडेंट नरेरी वहाँ गए, मैं उस फंक्शन में खुद शामिल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इनको दिया गया था, अभी 2 साल पहले वहाँ से लेकर आए हैं। आप लोगों का एक फर्क बनता है जो हिंदुस्तान से यहाँ पर आ रहे हो, जिनका ओरिजिन हिंदुस्तान। आप सिर्फ ये ना समझिए कि आप अपने परिवार के नुमाइंदे हैं, अपने समाज के नुमाइंदे हैं, या अपने आप यहाँ से आप कुछ कमाई करने के लिए हैं। आप यहाँ पर चाहे तंजानियन नेशनलिटी ले लीजिए या ब्रिटिश नेशनलिटी ले लीजिए या इंडियन रहिए, आप हिंदुस्तानी ही कहलाएं। हिंदुस्तानी कहलाने से आप बदल, इसलिए चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हर हरकत, हर काम यहाँ की गवर्नमेंट नोट करती है। और अच्छा करने से हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होता है, थोड़ा गलत करने से हिंदुस्तान का नाम उस तरह से घटता है। ये कहने का भाव मेरा ये है, आप हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं, इंडिविजुअल एम्बेसडर। आप ये ना जानिए कि जो एम्बेसी में बैठे हुए हैं
या हाई कमीशन में बैठे हुए एम्बेसडर या हाई कमीशनर वही है। आप लोग ज़्यादा हैं, वो तो पब्लिक में कभी आते हैं, साल में 6 महीने में 2 महीने में कोई फंक्शन में आते होंगे। आप हर वक्त यहाँ घूमते हैं, आपस में भी और यहाँ के बाशिंदों में। तो जो आपका प्रभाव है, जैसा प्रभाव आप लेंगे वैसा हिंदुस्तान का प्रभाव रहेगा। हमारा देश का, भारत का और तंजानिया का बहुत मित्रता का संबंध है और पुराना है। जितना पुराना हो जाता है वो हिस्टोरिकल भी कहलाता है। इसलिए इसको हम हर कीमत से, हर जैसे भी हमें कोई भी मेहनत करनी पड़े, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें साथ निभाना चाहिए और हिंदुस्तान को सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब बहुत लंबी बात मैं कहता हूँ, आपसे आज्ञा मांगता हूँ और फिर एक दफ़ा इस बात की आपको बधाई देता हूँ कि जो जिस ढंग से अब मैं सतवंत सिंह जी का, पांडे जी का, इनके पिताजी का या संध्या सिंह जी का धन्यवाद करूँ तो ये तो अपना धन्यवाद करने वाली बात है कि मैं अपना धन्यवाद करूँ, लेकिन असली धन्यवाद आपका है जिन्होंने पधार कर सतगुरु जी के यहाँ पर दर्शन किए और इतना टाइम दिया और यहाँ आकर आपने ये दिखाया कि हम यहाँ पर जो हम हिंदुस्तान से आए हैं सतगुरु जी के साथ मैं और सब साथी, उनको ये दिखाया। हम जाकर ये कहेंगे कि वहाँ पर हिंदू, सिख और मुसलमान सारे हिंदुस्तानी कैसे किस ढंग से प्रेम प्यार से आपस में रहते हैं। इसलिए आप धन्यवाद की ज़्यादा पात्र हैं। जय नमस्कार। ये थे सरदार रविंद्र सिंह जी हंसपाल, जो कि भारत की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और नामधारी दरबार के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ की नामधारी संगत ने एक यादगारी किट स्मारिका तैयार की है। उसमें एक फाइल है और सोवेनियर है, कुछ लिखने की सामग्री है। तो ये सब डेलीगेट्स को दी जाएगी। इसका विमोचन समुद्री अब हो रहा है और तंजानिया की नामधारी संगत के प्रधान महोदय सरदार सतवंत सिंह जी सतगुरु जी की सेवा में ये किट अर्पित कर रहे हैं और सतगुरु जी द्वारा ये विमोचन इसका हो रहा है। विजय फोटो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में, पावन चरणों में निवेदन है कि वो अपने प्रवचनों द्वारा आई हुई साध संगत को निहाल करें। परम कार्यों माननीय सब संस्थावां नेतागण, आपने इस समागम के बारे में सुना, देखा। हम सब लोग जो आए हैं, हमारा मंतव्य ये है कि हम सब खुदा, भगवान, सदगुरु को मानने वाले हैं। जैसे आज नाम सिमरन 1 घंटा हुआ तो आप सबको प्रार्थना की गई थी
कि 1 घंटा नाम सिमरन में सब लोग शामिल होने चाहिए। ये नहीं कि जो नाम हम सिमरन करते हैं वो करो, जो आपको आपके गुरु ने दिया हुआ है, जो कुछ किसी ने रास्ता अख्तियार किया है, नाम परमात्मा का है, वही सबको लेना चाहिए अपने तरीके से। जैसे आपको बताया गया है कि आजकल हमारे भारत में हिंदू सिख का चर्चा काफी चल रहा है। जब से दुनिया बनी है उसमें कभी शांति और कभी अशांति ऐसे चलता रहता है। जब से दुनिया बनी है कभी बीमारियां फैलती हैं और कभी रोग रहते हैं लोग। जब बीमारियां फैलती हैं उसके लिए उपचार किया जाता है कि रोग करने के लिए जड़ियाँ बूटियाँ आग का उपयोग करते हैं। अस्पतालों में जाते हैं लोग, और ऐसे ही हमारे देश में ही नहीं, लगता है कि सब दुनिया में शांति का फैलाव बहुत बढ़ता जा रहा है और बढ़ चुका है। तो जो लोग मारू हथियार बना रहे हैं उनके ऊपर ऐसा लगता है कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब अर्जुन को कहा गया कि तुम अपना धनुष उठाओ और ये लड़ाई को खत्म करो, तो उसने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा ऐसी है कि उसके अनुसार ये फौज थोड़ी है, इसके ऊपर मैं अपना गंडीक धनुष नहीं उठा। वो गुरु की आज्ञा आज शायद इन लोगों पर नहीं है, और उसका जो अब ठहराव हो रहा है, लगता है कि उसका कारण सिर्फ यही है कि वो हमारे से ज़्यादा जानते हैं कि ये मारू हथियार जो है जब हमने चला दिए तो हम भी रह नहीं सकेंगे। कहते हैं कि जो अमेरिका वालों ने हथियार बनाए हैं वो उनका निशाना बहुत सही है और बहुत जल्दी पहुंचते हैं। जैसे वो अमेरिका से चलाएं, रूस पर ही चलाएंगे वो, इस समय तो उनका निशाना वही है और उनका अमेरिका होगा। वो कहते हैं कि 5 मिनट में अमेरिका से वो हथियार रूस पहुंच जाएगा और 1 फुट के निशाने पर वो इससे ज़्यादा नहीं दूर जाएगा। जहाँ उन पर निशाना रखा हुआ होगा उसमें 1 फुट में जाकर गिरेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब वो यूरोप में वो अपने अड्डे बनाएंगे या बना चुके हैं तो वहाँ से छोड़ेंगे उस हथियार को तो वो 3 मिनट में जाएगा। क्या करेगा? लोगों को मारेगा, और जिनको वो मारेगा वो क्या करेंगे? एक आदमी कुरान शरीफ लेकर बैठा है, एक गीता लेकर बैठा है या कोई भी धर्म ग्रंथ लेकर बैठा है, उसके पास बैठकर वो बंदूक चलाता है। तो जब वो बंदूक चलाता है तो जिस पर चलाता है वो क्या करेगा बेचारा? वो चलाएगा तो फिर वो कहेगा देखो जी मेरी गीता का अपमान किया है, मेरे कुरान का अपमान किया है या मेरे किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान किया है। तो कौन करता है? वो खुद जो बंदूक चलाने वाला धर्म ग्रंथ लेकर बैठा है वो करता है। मैं ऐसा समझता हूँ। तो यही धन राशि जो है अगर उन लोगों पे इसका खर्च हो, जैसे आपने बहुत बार में पढ़ा होगा इथियोपिया में कितने लाख लोग भूख से मर गए हैं और कितने मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? उनको रोटी पहुंच रही है उनके देश में, लेकिन उनके देश में वाहन नहीं है जो रोटी को उन लोगों तक पहुंचा सकें, या उनमें कोई एक आदमी आगे लगने वाला है वो मर गया है तो उसके पीछे कोई आदमी काम करने वाला बच्चे औरतें नहीं है तो उसके कारण वो मर गए हैं, वो मर रहे हैं। क्या उनकी तरफ
उनका ध्यान नहीं है, वो खुदा के आदमी नहीं है, वो भगवान के आदमी नहीं है, या भगवान या खुदा को छोड़कर भी वो आदमी नहीं है। आज सब लोग ये कहते हैं कि मनुष्यता जो है उसका कुछ करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा कि हम अपने धर्म से पतन हमारा हो रहा है, तो अपने धर्म में हम लोग ठीक नहीं है। धर्म क्या चीज़ है जो कुछ मैं समझता हूँ। कई तरीकों से धर्म को देखा जाता है। एक बार जापान जाने का मौका मिला, तो मेरे साथ कुछ और सज्जन थे, मैं तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो उनको मैंने कहा कि तुम अंग्रेजी में बोलो। उन्होंने कुछ अंग्रेजी में कहा। जापान टोक्यो में हम लोग गए थे, वहाँ दूसरी 13 यूनिवर्सिटियों के लड़के बुद्ध धर्म को पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बुद्ध धर्म। तो लड़के लड़कियों ने सवाल किया कि सबका साझा धर्म कौन सा है। बड़ी मुश्किल बात है। तो जो कुछ मेरे साथी ने वो अंग्रेजी में उत्तर दिया, मैं थोड़ा समझता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता, अपना विचार कह नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि मैं कहता हूँ और मेरा तर्जमा आप कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरबानी में जो धर्म लिखा है, जैसे उसमें मुसलमानों की वाणी है, हिंदुओं की वाणी है, सिख गुरुओं की तो है ही। तो बाबा फरीद जी का एक कथन है आस्था राग में, कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। तो मैंने उनको कहा कि ये सबका साझा धर्म है, जो धर्म को नहीं भी मानते वो करें बेशक भले ही कुछ, पर वो कहेंगे नहीं कि झूठ हो। तो बहुत वो लोग खुश हुए। तो ऐसे हम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपने धर्म में रहकर एक दूसरे का सत्कार कर सकते हैं, और दूसरे का धर्म का हमें बहुत जरूरी है कि सत्कार चाहिए। इसके कारण ये लड़ाई बंद हो सकती है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपने सुना है, शायद ये बात आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे ये बताया गया कि शिव मंदिर में ब्राह्मणों ने कश्मीर में जाकर प्रार्थना की कि औरंगजेब ऐसा कर रहा है, तो इसके लिए कुछ हमें राहत मिलनी चाहिए। तो वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ मंदिर में एक चिट्ठी गई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि गुरु नानक की गादी पर गुरु तेग बहादुर है, आप उनके पास जाएंगे। तो जब वो लोग उनके पास गए तो उनको कहा गया कि तुम उसको कहो कि तेग बहादुर जो है ये हमारा पीर है या गुरु है, इसको आप मुसलमान कर लो तो हम सब लोग हो जाएंगे। तो उसको मुसलमान को करने के लिए वो काम किया गया, जिसके कारण वो सब कुछ हुआ। उनको पूछा गया कि तेरा नाम तेग बहादुर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तेग मेरे ऊपर बहादुर नहीं है, मैं तेग के ऊपर बहादुर हूँ, इसलिए मेरा नाम तेग बहादुर है। तो ऐसे इतिहास में लिखा है कि जब उनको उनका शीश काटने के लिए बहुत एक जवान आदमी की ड्यूटी लगाई गई, तो तेग के ऊपर, उस तलवार के ऊपर एक कच्चा तागा लपेट दिया गया। जब उसको बहुत जोर से उसने तलवार मारी तो उसका हाथ जो था वो झटक गया और तेग के लगने से बगैर उसका शीश दूर जा पड़ा। तो वो तागा नहीं कटा गया। भाव यह है कि उस तेग के ऊपर गुरु तेग बहादुर का नियंत्रण था, तेग का नियंत्रण उनके ऊपर नहीं था। तो इसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका तीनों बड़ो कलू में ताका। फिर उसको ये कहा कि धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। ये हिंदू धर्म के लिए ये साका किया गया
और आज अगर हम देखें कि सिख किस निगाह से हिंदुओं को देख रहा है, जिनकी रक्षा के लिए सिखों को गुरु तेग गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर का शीश बलिदान का वो लिखा है। और जिस तिलक जंजू के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बलिदान दिया, हमारे हिंदुओं में कितने तिलक हैं, कितने जंजू हैं, हमें भी देखना पड़ेगा। कितने मुसलमान भाई, एक इस्माइल है, हांगकांग में हमारे एकदम सारी सिख का एक पार्टनर मुसलमान था, तो उसको मैंने पूछा कि तुम कितने वक्त नमाज पढ़ते हो, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो मैंने कहा कि ये आपका नाम मुसलमान, जो आप इस धर्म को मानते हैं, उसमें बहुत जरूरी है। तो उसने कुछ मेरा कहा मान लिया। तो ये कबीर जी ने ऐसा लिखा है, कबीर गूंगरा राम अल्लाह का सब गुरु पीर हमारे। एक मुसलमान सरदार मोहम्मद खान, कैसा नाम था उसका, वो डेरा गाजी खान की तरफ रहता था। तो उनके पास घोड़े बहुत अच्छे थे। गुरु प्रताप सिंह जी अक्सर वहाँ उधर जाया करते थे। सरदार मोहम्मद खान, सरदार का किताब है, जैसे हमारे सरदारों को कहा जाता है, मुसलमानों को में भी सरदार कहा जाते हैं। तो जब गुरु जी उधर गए, तो मैंने जो अपने गुरु जी के पास जो भाई विजीत सिंह जी उनके पास रहते थे, उनसे जो बहुत ही करुणामयी हालत देखी। वो कहते हैं कि गुरुओं को जब जी जाता है तो 7 मुट्ठी भांग की ले ली और मुसलमानों को बाछी दे दी। तो अब ये सरदार खान जो है गुरु जी को लेकर जा रहा है और गुरु जी उससे ही बात कर रहे हैं, हमारे से कर नहीं रहे। तो वो गुरु प्रताप सिंह जी को वो अपने घर में ले गया और सब अपनी घर वालियों बेटियों को सबको कहा कि ये खुदा आपके घर में आ गया है, ये सब पर्दा उठा दो, खुदा से पर्दा नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसको कैसा क्या दिखाई दिया। और ये आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो एक खेत में पड़ जाती है और दूसरा खेत छूट जाती है, उसको ऐसा दिखाई दिया। और जो सब प्रताप सिंह जी के ऊपर बहुत उसकी श्रद्धा थी। और एक राजा फजलदार हुए हैं, जो जिनको राजा का खिताब अंग्रेज के समय मिला था, उन्होंने बहुत फौज वगैरह दी थी, राजपुर के जिले में रहते थे। वो सदगुरु जी को बताया करते थे कि महाराज इस बात की हिंदुओं को सुगंध है, वो नाम नहीं लेते थे मुसलमान होकर, उस गाय का नाम नहीं लेते थे, जिस बात की हिंदुओं को कसम है, सुगंध है, मैं अपने सब चक्कों में, अपने खेतों में या अपने जायदाद में उनका बिल्कुल उनको मार नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी हमारी सांझ बनी हुई थी। तो ये जोहला का शब्द हल्ला हमला, इसका आपको बताया गया है कि एक दूसरे के ऊपर करना, ये क्यों बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने? उस समय हिंदुओं को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। अगर मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती तो सैद खान जैसे आदमी को, जो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर चढ़ाई करके आया, तो उसको दर्शन दिया, तो उसका मार उतारा किया। भीखन क्या जैसे जो बहुत सेवक थे सदगुरु जी के, और ऐसे गुरुओं के खिलाफ बेशक हिंदू राजे पहाड़ियों से गुरु जी के वो मुसलमान नहीं थे, उनसे बहुत लड़ाई हुई। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि हम लोग जितने हम लोग भारत से आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम सब लोग इकट्ठे बैठकर अपने धर्म के मुताबिक अपने आप को सुबह उठना या किसी को प्रेम करना, किसी के धर्म का आदर करना, अपने धर्म का भी प्रचार करना, इसलिए हम सोचते हैं। हम कितना कर सकते हैं, ये आपने देखा है कि ये हॉकी खेलने वाले लड़के आए हैं, ये जो पहरावा है ये भारतीय एक पहरावा है, इसी पहरावे में ये जाकर खेलते हैं। तो ये अपने लोटे का पानी पीते हैं,
या अपना सुबह उठकर जो भजनबानी करते हैं वो करके फिर अपना खेलने लगते हैं, शाम को करते हैं, जो जूते वाले पाँव धोकर अपने बिस्तर में जाते हैं। ये सारी चीज़ जो भारतीय सभ्यता की है। और जैसे ईसा मसीह का धर्म इधर बहुत है, जो मिनिस्टर साहब मुझे नाम से नहीं आता, वो हेल्थ के मिनिस्टर जो आए थे देने के लिए, हवाई अड्डे पर आए थे मेरे पास, वो भी क्रिश्चियन हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह की इतनी ताकत थी, वो जब चला करते थे तो जो हड्डी उसके पाँव छू जाती थी तो वो उठकर आदमी बन जाती थी। तो कितनी वो ताकत हमारे में आनी चाहिए। तो हड्डी को आदमी बनाने के लिए तो नहीं, तो हमारा मन को ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसी ताकत जरूर होनी चाहिए। तो बहुत खुशी है इस बात की, जो सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं। जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं, ये सब हिंदू धर्म वाले जानते हैं कि जब पांडवों ने वेद जग किया तो वाल्मीकि जी को बुलाया गया, तो कहने लगे मुझे वेद जग का फल दो तब आऊँगा। तो वो कहने लगे हमारा तो अपना ही पूर्ण नहीं हो रहा, तो आपको कहाँ से हम ला कर दे दें। तो भगवान कृष्ण जो गुरु होते हैं कोई रास्ता निकाल देते हैं। उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू जा। वो जब गई उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि जो साधु के पास साध संगत में जो जाता है चल के, उसका एक एक पाँव जो चलता है, एक कदम चलता है, उसको उसमें जग का फल होता है। तो एक उसमें जग का फल आप ले लो और बाकी मेरे पास रहने दो। तो वो चल पड़े। तो जो लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, सब लोग आए हैं, अगर सही माने से हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो वही इसमें जग का हमें भी फल प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि अपने नामधारी संगत के रास्ते और आप लोगों की मदद से जो इधर के गरीब लोग बीमार रहते हैं उनके लिए कुछ करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये गरीब और अमीर होना किसी की जायदाद नहीं होती, कभी कोई हो सकता है। तो इसलिए हमें जो हमारे जिन लोगों के पास रुपए धन और सब कुछ है, उनको ये बहुत सोच लेना चाहिए कि कभी ऐसा समय हमारे पर भी आ सकता है। और आप सब जानते हैं कोई ज़्यादा धन वाला हो जाता है, कोई कम धन वाला हो जाता है, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए हमें उन लोगों की सेवा बहुत जरूरी है जो हम लोग करें, ताकि हमें इसका अच्छा फल प्राप्त हो सके। तो हमारे जो संगीत वाले लड़के हैं वो भी इसी संगीत का मतलब शास्त्रीय संगीत जो है उसको जो गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द गुरु नानक देव, पहले हम उसको कहते हैं आदि ग्रंथ साहब और दूसरे को कहते हैं दसम ग्रंथ साहब। हमारे में इन दोनों के पाठ होते हैं नामधारियों में, और इन दोनों की वाणी के शब्द गायन किए जाते हैं। जिनमें से आज एक शब्द ये लड़के पढ़ेंगे केदारा राग में, वो गुरु गोविंद सिंह जी का अकाल उस्तक में जो लिखा हुआ है वो शब्द है। चीर कैसी चीरावत, ताश कैसी छत्रा ने, छपा कर कैसी छप कालिंदी के फूल के, हंसनी सी सियारू, हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी तार चली सातों संग रूल के, पारा सी पलाऊंगढ़, रूपा कैसी रामपुर, सोरा सी सुरंगाबाद, नीके रही झूल के, चांदनी सी चांदागढ़, चंपा सी चंदेरी कोट, कीर्त तिहारी रही मालती सी फूल। ये शब्द है जो आज लड़के ये पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे पता नहीं कौन सा शब्द पढ़ेंगे। और हमारे मेरा सिर्फ कहने का भाव है कि हमारे नामधारियों में
हम समझते हैं कि गुरु नानक की और गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में कोई फर्क नहीं है। कुछ विद्वानों ने ऐसा भी लिखा कि ये गुरु गोविंद सिंह की वाणी नहीं है, ये गुरु वाणी नहीं है, उनको मुबारक हो। लेकिन अब वही लोग को मानने लगे हैं कि हाँ ये भी गुरबानी है। ये अंग्रेज ने आकर हिंदू सिखों का, मुसलमान हिंदुओं का, मुसलमान सिखों का तो फर्क डालना ही था, वो डाला, लेकिन बानी में फर्क डाल दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी की बानी को उनको दृढ़ कर दिया कि ये गुरु गोविंद सिंह की बानी नहीं है, ये गुरबानी नहीं है। और बहुत ही हमें संकोच होता है ऐसी बातें करने से। एक आदमी ने, एक सिख ने ऐसा कहा कि ये बानी तो, ये उच्चारण तो गुरु गोविंद सिंह की हुई है, लेकिन ये गुरबानी नहीं है। हमें तो समझ नहीं आती इसका क्या मतलब है। ये तो इंग्लैंड वाले या अमेरिका वाले बता सकते होंगे जिन्होंने ये दृढ़ किया है लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान की तरफ नहीं जाना चाहिए। ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख जो है, सब जो हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, भारत के वासी हैं, अब हम इस देश के वासी हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने धर्म में किसी के धर्म का आदर सत्कार करना चाहिए। हमारे बहुत ही दोस्त, बहुत ही मेहरबान मुसलमान साहब हैं, वो जामा मस्जिद वाले, दिल्ली वाले पीर हसन निजामी साहब हैं, और मुझे उनके नाम नहीं आते, दूसरे पीर साहब जो आए थे, तो वो हमारे बहुत, हमारी संस्था में, हमारे सभा में हमें बहुत मदद देते रहते हैं। जब ऐसी सभा होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे होते हैं, तो हमारी बहुत मदद करते हैं इस बात में, तो हमें बहुत खुशी होती है। और सदगुरु प्रताप सिंह जी से के साथ बहुत ही मुसलमानों का, हिंदुओं का और उन सिखों का जो उनको गुरु नहीं भी मानते, उनका सबका बहुत ही प्रेम था। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो आज झगड़े कर रहे हैं, इनसे ऊपर उठकर अपने देश की तरक्की और अपनी मानसिक तरक्की जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, जिससे हम लोग यहाँ से जब जाएंगे आगे जाने के लिए कोई अच्छी जगह बना लेंगे। मैं यही कहकर आपसे आ गया।
महाराज